coming up from the Northeast Live Studios in Guwahati. Northeast Tonight with Wasbir Hussain. Hello and welcome to Northeast Tonight, the show that decodes the region. Despite strong denials by the Arunachal government as well as Chief Minister Pema Khandu himself, the Arunachal Against Corruption, an anti-graft group, is going ahead with its agitation demanding a CBI inquiry into its allegations of large-scale corruption by Chief Minister Khandu and his government. The Arunachal Against Corruption's main charge is that there has been serious corruption in projects whose total cost involves more than rupees 3,000 crore. Activists of the Arunachal Against Corruption have been camping in New Delhi, holding protests. The group is demanding special, immediate stepping down of Chief Minister Khandu, arrest of officers and political leaders allegedly involved in the scams, and a CBI investigation into the charges. Now, several questions arises. When a group levels such specific and serious charges about large-scale corruption in a sensitive frontier state like Arunachal Pradesh, and the government at the highest level denies it, saying the allegations are politically motivated, what do the common people do? How does one get to the truth about whether the government is wrong or whether those leveling the charges are wrong? Is it enough for a state government or a chief minister to deny the allegations, saying they are politically motivated and are being engineered by those who were denied party tickets for the 2019 elections? To discuss the subject, I am joined from Itanagar by Arunachal BJP State Secretary, Mr. Tadar Niglar. Joining me from New Delhi is the President of the Arunachal Against Corruption, Mr. Tame Tubin, and Arunachal Against Corruption's convener and spokesman, Birendra Talang. Joining me as well from Itanagar is activist Sol Dudum, who was in the news over the SEPA water supply issue. And also with me from Roing is Mr. Mutsu Mithi, President of the NPP's Arunachal Unit and MLA. And in Pasighat, I have Mr. Tobom Dai, former General Secretary of the All Arunachal Pradesh Students Union. Gentlemen, welcome to Northeast Tonight. First, let me go to you, Tame Tubin ji. पहले आपके पास में जाता हूँ, आप दिल्ली में है. तामे टुबिन जी, आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहा है, आप कह रहा है कि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू करप्शन में इन्वॉल्व है, उनका गवर्नमेंट करप्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत लोग सरकार का लोग भी कह रहे हैं कि आपका पास इतना बड़ा एलिगेशन आप लगाया है तो आपका पास एविडेंस भी होगा, और ये आपका पूछ रहा है कि आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं. अब क्या कहेंगे? थैंक यू सर. सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट लाइव न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. और देखिए, कोर्ट में सब कोर्ट जा के कोर्ट में कुछ नहीं होता है. उस दिन भी हाल ही में हमारा कानून मंत्री हमारा ये किरण रिजिजू ने कहा था कि सबूत होने से कोर्ट में आप इंसाफ मिलेगा. तो कोर्ट में जाने से आपको कुछ नहीं मिलता है. कोर्ट में जाने से भले सिर्फ आपको मिलती है तो सिर्फ तारीख, आपको डेट पे डेट दिया जाता है. आपका एक स्कीम है ये SGRY, ये आपका 68 करोड़ का कुछ अमाउंट का घोटाला है. तो इसका भी केस आपका ये 2007 से शुरुआत था. तो आपका कुछ औरिंग तासी बोल के एक नाम ने इसका ऊपर में ये कोर्ट में फाइल किया था. तो औरिंग तासी को भी उन लोगों ने आपका पेमा खांडू का
परिवार ने डरा धमका के उसको अंडरग्राउंड होना पड़ा। नहीं, टामे टुबिन जी, हम इस डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन यू नो लाइक आप कोर्ट में हम लोग सब विश्वास करते हैं, कोर्ट इज सुप्रीम, कोर्ट का जजमेंट को हम विश्वास करते हैं, आप भी करते होंगे। नाउ इशू ये है कि करप्शन चार्जेस लगा के लेकिन कोर्ट में आप नहीं जाएंगे, तो ये कैसे होगा? क्योंकि अल्टीमेटली जस्टिस कौन सही है कौन गलत है ये कौन तय करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सर आपका साउंड क्लियर नहीं है। बीरेंद्र तलांग जी, अगर आप सुना है हमारा क्वेश्चन, आप इसका जवाब दीजिए। बीरेंद्र तलांग जी, मेरा प्रश्न यह है, आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में सिर्फ डेट का ऊपर डेट देते जाते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप अगर कोर्ट में नहीं जाएंगे तो आपका एलिगेशन सही है या तो सरकार का डिनायल सही है, किसका पता कैसे चलेगा? बीरेंद्र तलांग जी। सर, can you hear me? Can you hear me? Yes, I can hear you. सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम लोग का जो वोट है उस पर हमको भरोसा है, पूरा भरोसा है, लेकिन हम जो आम आदमी जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पीने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग का डेली लाइवलीहुड पास पैसा नहीं है, अपना जो रोजी रोटी है वो हम बहुत तकलीफ से जो हम गुजारा कर रहे हैं, हमारा जो दिनचर्या है, तो हाउ कैन वी मैनेज द फी? हम कैसे फी को बियर कर पाएगा? पब्लिक जो आम आदमी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप केस फाइल करना है तो जो लीगल प्रोसीजर है उसमें हमको जो मनी का इन्वॉल्वमेंट है, पैसा का इन्वॉल्वमेंट है, जो हम लोग का जो एडवोकेट को हमको हायर करना पड़ता है, वो तो हम आम आदमी है उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद और ये भी बताना चाहूंगा कि कोर्ट में है जो केस का लिस्टिंग है, केस हेयरिंग के लिए जो लिस्टिंग है उसको बार बार लगातार उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। हमको उस पर डाउट है। हम ये नहीं कह रहा कि हमको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, लेकिन आम आदमी जो जिसके पास तो अपना खाने के लिए दो वक्त खाने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास तो अपना फैमिली चलाने के लिए रुपया नहीं है, हम कैसे एक जो इतना जो मल्टी करोड़ जो थाउजेंड करोड़ का मालिक है उसके अगेंस्ट में अपना जो केस को हम जीत पाने का हमारा जो संभावना है, ठीक है, जो मैं आऊंगा, प्रोबेबिलिटी से वो बहुत कम है। राइट। तलांग जी, टामे टुबिन जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप कैसे विस्तार का आपका मेन एलिगेशंस क्या है वो भी आप जानने के लिए कोशिश करूंगा, दोबारा आऊंगा। I have with me Mr. Tadar Niglar, State Secretary Arunachal BJP. I have Mr. Mutsu Mithi, President of the NPP Arunachal Unit and an MLA. I'll come to both of you slightly later. मैं जाना चाहता हूं, अभी ईटानगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोल डोडुम जी। सोल डोडुम जो एक एंटी ग्राफ्ट एक्टिविस्ट है, he was in the news recently over the SEPA water supply scheme. Now मेरा सवाल ये है सोल डोडुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो एलिगेशन है, उनका जो मूवमेंट है, पहले तो आप इसको सपोर्ट करते हैं क्या? थैंक यू सर। एक्चुअली मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं सर। मैं सपोर्ट बिल्कुल करता हूं आम पब्लिक के हैसियत से, क्योंकि जो ये लोग कर रहे हैं, जो एलिगेशन लगा रहा है, अगर सचमुच हमारा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री अगर अपना आप को सपा मानता है, तो अपना आप को क्लियर है मानता है, यानी कि हम करप्शन नहीं के मानते हैं, तो वो अपना आप को आगे आना चाहिए। अभी तक यहाँ पर 28 डेज धरना बैठा है, उसके बाद दिल्ली पर इतना फुट मार्च किया, उसके बाद अभी वहाँ में धरना बैठ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो अभी चल रहा है, जो AAC टीम जो कर रहा है, वो 100% राइट है, क्योंकि हम भी ऐसा मानते हैं कि जो अभी हम लोग का ये कोड है, क्योंकि आम आदमी जो गरीब लोग का पास मैक्सिमम सर अरुणाचल में ऐसा है कि जो नेता लोग है, हम लोग का जो नेता है, ऑफिसर है, वो मैक्सिमम पैसा को करप्शन खा पी के रखने के बाद अभी हम लोग का जो अरुणाचल में मैक्सिमम गरीब है, तो मैक्सिमम कोर्ट पर एफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये नेता लोग क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती
सोशल एक्टिविस्ट को या जो उसका अगेंस्ट में मुद्दा उठाएगा उसको बोलता है कि आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए। सर, हम लोग कोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्यों अफोर्ड नहीं करते? कौन हम लोग यहाँ में बहुत तक कम लोग हैं जो करोड़पति है, और यहाँ पर क्या करते हैं, अगर यहाँ में ट्राइब का ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई छोटा ट्राइब अगर बाई चांस किसी को अगेंस्ट में अगर सच्चाई बात करो या सच बात करो, ऐसा होता है कि यहाँ में दबा दिया जाता है। तो ये जो ये चीज जो तो जो कर रहा सोल्दोडम है, जी, जो CBI एक्चुअली सोल्दोडम सर जी, मैं थोड़ा या बताना मेरे चाहता हूँ तो आपको ये सवाल भी आता है, तो एक पार्टी ने एलिगेशन लगा रहा है, दूसरा पार्टी ने एलिगेशन को डिनाई कर रहा है, तो आम आदमी के लिए जो ये दूध का दूध पानी का पानी, ये किस तरह से होगा? ये क्या सीबीआई इंक्वायरी से होगा या कोर्ट से होना चाहिए? सर एक्चुअली देख सर, यहाँ पर ये सर एलिगेशन नहीं लगा रहा है, जो एएसी जो टीम है एलिगेशन नहीं लगा रहा है। एलिगेशन उसे लगा रहा है, बोलता है जिसका पास सबूत ना हो। यहाँ में तो ऑलरेडी वो लोग का पास सबूत है, तो एलिगेशन कहाँ सर? ये तो बता रहा है सरकार को, जो बीजेपी सेंट्रल सरकार को बता रहा है कि सीबीआई लाओ, ईडी लाओ। सर आपको एक बार हम बता दूं कि हम भी इसलिए ईडी और सीबीआई लाने के लिए अरुणाचल में हम भी इसलिए मांग कर रहे हैं। एक बार है सर, हमारा अरुणाचल में बहुत करप्शन है, टू मच करप्शन, हर चीज में सर करप्शन है। सर मैं आपको डिटेल एक बार बता दूं, बात को सर हम वो नहीं करेगा। अभी सर एक है हम सीबीआई, अभी समय जो हम लोग अरुणाचल का मर्डर केस है, जो हम लोग अरुणाचल में मर्डर केस रखा है, जो अभी एसआईटी इंक्वायरी कर रहा है, वो कुछ होने वाला नहीं है सर। हम बता रहे अभी इसको सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए। हम भी इसलिए सीबीआई मांग कर रहे हैं, जैसे कि नरंग पिंच एक्स एमएलए, जो नरेंद्र पिंच एक्स एमएलए है, अभी 5 साल हो गया है, उसका बेटी तरफ के रो रो के भटक के घूम रहा है। देखिए, हम लोग डाइवर्ट नहीं करेंगे, हम लोग इस इशू में रहेंगे। अभी नहीं सर, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। आपका पास मैं आऊंगा, सोल्दोडम जी, आपका पास दोबारा मैं आऊंगा। तबम डाई है क्या हमारे पास? Okay. Now, let me, before finally asking Mr. Tadar Nigla to respond, I'll give him sufficient time to respond and go back to Mr. Tame Tubin and Birender Talang. लेकिन मैं आता हूँ अभी मुत्सु मिथी जी, आप एनपीपी का प्रेसिडेंट है, यू आर ए कोalition पार्टनर ऑफ द रूलिंग बीजेपी, आप कोalition पार्टनर है, आप अलायंस पार्टनर का अब एक अंश है। नाउ आप किस तरह से देखते हैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन? दे हैव लेवल सीरियस एलिगेशंस। इनका कहना है कि जो प्रोजेक्ट्स है, स्कीम्स है, टोटल 3000 करोड़ से भी अधिक जो कॉस्ट का स्कीम है उसमें घोटाला हो रहा है। तो इन्होंने दिल्ली में गया, दिल्ली में जाकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी 4-5 दिन का बाद में इन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहा है, इन्होंने अरुणाचल में प्रोटेस्ट किया। ये पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है अरुणाचल। तो आपका क्या कहना है एज एन अलायंस पार्टनर? हाउ आर यू लुकिंग एट द सिचुएशन? कैसे देख रहे हैं आप? Am I audible? Yes. पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं पूरी बात तो नहीं सुना, बिकॉज यहाँ का जो नेटवर्क है थोड़ी सी एराटिक है, बट आई गेट द जिस्ट ऑफ इट। जो बात कर रहा है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के जो एलिगेशंस लगाया हुआ है, और आप अभी ने जो जिक्र किया है 3000 करोड़ के ऊपर, उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आई नो द एलिगेशंस रिगार्डिंग 142 करोड़ जो पावर सेक्टर में जो दीनदयाल उपाध्याय के जो योजना थे उसके ऊपर जो एलिगेशंस चल रहा है, जो कोर्ट पे सब जुडिस है। किसी ने इसी चर्चा में किसी ने जिक्र किया था कि दूध का दूध पानी का पानी। Now that means you want to clear everything once and for all. Now देखिए, संवैधानिक तरीका पे हमारा 3 स्तंभ है कॉन्स्टिट्यूशनली, हमारा एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। नाउ अगर आप एग्जीक्यूटिव पे ऊपर विश्वास नहीं है, द जुडिशरी इज टू लुक to interpret the law and see that the executive also is working as per the law. Now if you still do not believe in the judiciary, then the only विकल्प जो आपके पास है वो है the legislative, which is the election process. Now that is the only दूध का दूध, वही तरीका से दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। Now let me give you my perspective, मेरे अपने सोच, अपने विचार, जो मैंने पिछले 7-8 साल से जो मैं विधायक बन के चला। देखिए, कांग्रेस के ज़माना पर, जब उस समय भी मैं विधायक था, there used to be a lot of allegations against the government,
नवम टुकी सरकार के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस होता था उस समय पर, बट उस समय पे क्या होता था कि देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ बैकडोर नेगोशिएशन, चैनलिंग, और कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट का ऊपर या पैसा का ऊपर, एंड देन जो एसोसिएशंस का मांग होता था, ब्लैकमेल होता था, बन कॉल, वो सब वो उसी तरीका से निपटाया जाता था। लेकिन ये पिछले 6-7 साल से मैंने व्यक्तिगत रूप में देखा है पेमा जी की सरकार पे, उप मुख्यमंत्री चोना जी की सरकार पे, कि जो तुष्टीकरण जो है, अपीसमेंट पॉलिसी से वो बंद हो चुका है। नाउ आई थिंक फ्रॉम देयर अ लॉट ऑफ लोगों को थोड़ा तकलीफ भी हो रहा है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि आप देखिए देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशंस इन एवरी सेक्टर। Right. करप्शन एग्जिस्ट, करप्शन है, there's been a lot of transformation and there's been a lot of reforms. Right. But in a government, the head of the government is may try as he will, the down the line जो executive जो हमारे bureaucratic setup है वगैरह है, वो कभी कभी they start they're kleptocrat by nature. ओके, आपको मेनली मुत्सुमिथी जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। आप मेनली कह रहे हैं, आप एक नया ट्विस्ट भी डाला है आपने कहा कि कांग्रेस का सरकार ने ये सब एलिगेशन जब आते थे इनको मैनेज कर लेते थे, लेकिन आज बीजेपी सरकार जो है वो मैनेज नहीं कर रहा है, अपीजमेंट पॉलिसी नहीं कर रहा है, इसलिए किसी कोई लोगों का तकलीफ है। ये एक नया ट्विस्ट आपने डाला है। इसका ऊपर भी मैं टिप्पणी लूंगा फ्रॉम द अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन भी वही है, बट मोटा मोटी अरुणाचल पे ऐसे ही होता था। जी, समझ गया। नाउ लेट मी कम टू मिस्टर टाडर निगलार जी। Mr. Tadar Niglar is the state secretary of the Arunachal BJP. Now, Tadar Niglar जी, ये जो चल रहा है अरुणाचल में, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का सीरियस चार्जेस है, इनका कहना है कि काफ़ी सारा प्रोजेक्ट जो है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, पावर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पंचायत राज सिस्टम में जो प्रोजेक्ट्स है, माइनिंग एंड मिनरल डिपार्टमेंट में है, काम्पा फंड का बात कर रहे हैं, हाइड्रो पावर का बात कर रहे हैं, इस सारा प्रोजेक्ट्स में करीबन 3000 करोड़ का करीब प्रोजेक्ट्स है। इन्होंने ये नहीं कह रहा है कि 3000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट्स का टोटल कॉस्ट 3000 करोड़ से भी ऊपर है, इसमें करप्शन हो रहा है। तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने ऑलरेडी इसको डिनाई करके बोला है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो आपका क्या कहना है, क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बोल के छोड़ देना ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन आपका क्या कहना है, इसको कैसे क्लियर करना चाहिए? मैं सबको नमस्ते करते हुए मैं पहला पॉइंट पे आना चाहता हूँ, करप्शन। अरुणाचल में जब से, इससे पहले मैं जैसे मुचुमिथी साहब ने बोला, इससे पहले थोड़ा अपीसमेंट पॉलिसी होता था। अभी करप्शन भी बहुत हायर लेवल में होता था एंड रैम्पेंटली होता था। लेकिन जब से बीजेपी सरकार 2016 में आया, पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में, आज तक 50 करीबन हाफ सेंचुरी पहुंचने वाला है ऑफिशियल्स, इंजीनियर्स, कंट्रैक्टर्स जो अरेस्ट हुए हैं करप्शन चार्जेस में। ट्रांस अरुणाचल हाईवे के लेके भी, जो नॉर्मल स्टेट हाईवे में जो रोड में प्रोजेक्ट में लेते हुए भी, रेलवे कॉम्पनसेशंस जैसे केसेस में, अनिन्य में जैसे हाईवे कॉम्पनसेशन केसेस में। उसका बाद अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो पेड प्रोजेक्ट पेमा खांडू साहब ने बनाया, वहाँ में जो गड़बड़ी हुई थी, उन सब को लेते हुए फिलहाल हाल ही में पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीकेज केसेस का लेते हुए कम से कम 50 करीबन लोगों को अरेस्ट हुआ है। तो ऐसे जो करप्शन को लड़ रहे हैं, इंसान को बोल रहे हैं आप वो करप्टेड है। तो मेरा पहला सवाल है जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन से, कि आप ऐसे मुख्यमंत्री बताइए, आप ऐसे सरकार बताइए जो 5-6 साल के दौरान 50 से ज़्यादा अरेस्ट किया हो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, या यहाँ IAS ऑफिसर्स भी है, यहाँ डायरेक्टर भी है।
तो बताइए आप अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सवाल करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे एक चीफ मिनिस्टर से जो इंजीनियर सर्विस डे में अरुणाचल इंजीनियर एसोसिएशंस का फाउंडेशन डे में आके कहते हैं कि अरुणाचल से करप्शन हटाना है। इसीलिए इंजीनियर्स लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग स्कीम प्रोजेक्ट से कमीशन मत लीजिए। अब ऐसे चीफ मिनिस्टर का आपको कहते हैं कि करप्टेड है। इसके साथ साथ ये चीफ मिनिस्टर्स जब से वो पावर में आया, उनको लगा कि अरुणाचल को और देश को आगे लेके जाने के लिए हमारे यंगर जनरेशन्स को, उनका भविष्य को हम लोग लेके चलना पड़ेगा, उनके लिए रास्ता बनाए लेके चलना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा बीजेपी पार्टी अंडर द लीडरशिप पेमा खांडू साहब, विद द गाइडेंस ऑफ किरण रिजिजू, तापिर गाव, बिरम बागे साहब, एंड विद द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, आज तक ड्रग के मुहिम, ड्रग के खिलाफ कैंपेन में पिछले सितंबर 2021 से अभी फिलहाल सितंबर 2022 राइट, लेकिन 555 लोगों को अरेस्ट हुए। सर मेरे पॉइंट को आने दीजिए, मैं पॉइंट में आता हूँ। अरेस्ट हुए, अब आपको क्या कहेंगे तो इस बारे में, जैसे कि अभी मैं पॉइंट में आता हूँ। जो वो मैं सवाल था, मैंने एएसी से मैं चाहूँगा इस सवाल में जवाब दे। पहले मैं जो सवाल प्लेस किया था, अभी जो बात है कि दीनदयाल उपाध्याय का 142 करोड़ का जो बात कर रहे हैं, देखिए भाई साहब, ये सबको क्लियर होना पड़ेगा। रावण को सब पता है, लंका का एक दिन राजा था। रावण आसमान छूना चाहते थे, यमराज से नेगोशिएट करना चाहते थे, यमराज में मरना नहीं चाहता, स्वर्ग में सीढ़ी बनाना चाहते थे। पॉइंट पे आइए। रावण स्वर्ग में सीढ़ी बना के आसमान स्वर्ग से चल पाया? पॉइंट पे आइए। इसीलिए बात बोलने के लिए इजी होता है। सर मैं बोलने के लिए पॉइंट में आ रहा हूं। बात बोलने के लिए, ब्लेम करने के लिए इजी होता है। दीनदयाल उपाध्याय का केस कोर्ट में है, ये सब जुडिशरी सबको पता है। उसका बाद उसमें हम क्यों चर्चा करेंगे? जो कोर्ट में जो बोलेंगे तो बोलेंगे, कोर्ट जो जजमेंट आएंगे तो आएंगे। उसका बाद 3000 करोड़, यार 3000 करोड़ बोलने के लिए बहुत इजी होता है। नहीं, 3000 इसको आप संग्रहित करके 3000 करोड़ नहीं तादार जी, 3000 करोड़ का करप्शन नहीं बोल रहे हैं, 3000 करोड़ का अधिक प्रोजेक्ट्स में करप्शन हो रहा है। मैं तो वही तो कह रहा हूं, करप्शन नाम बोलने में इजी लगता है, लेकिन वो स्पेसिफाई करके दिखाए ना, करप्शन इसमें हुआ, इतना हुआ। ओके, अरे आरटीआई करके पेपर लेने में इजी है, लेकिन उसको आप अच्छा ठीक है, मैं आपको आपको इसको दिखाना पड़ेगा ना। आई वांट टू स्टॉप यू, एक मिनट के लिए आपको स्टॉप कर रहा हूं। आई विल कम बैक टू यू इमीडिएटली तादार जी। लेट मी गो टू सोल डोडुम। सोल डोडुम इज रेजिंग हिज हैंड्स, देन आई विल कम टू टामे टुबिन जी। यस सोल डोडुम, व्हाट डू यू वांट टू से? सोल डोडुम बता दो सर, जो अभी ये जो क्वेश्चन कर रहा है वो सर एक्चुअली वो रिसेंटली आया है, वो बीजेपी में, वो बीजेपी का बारे पता नहीं है, वो इसलिए जहाँ तहाँ थोड़ा मांग मसला होता है, इसलिए वो जहाँ तहाँ बोल रहा है, इसलिए बीजेपी का बारे पता नहीं है। हम आपको एक बात बता दो, जो क्वेश्चन किया उसका हम रिप्लाई देगा, उसको रिप्लाई देना जरूरी है। मैं कोई रिप्लाई दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि कौन सा एमएलए है जो 50 लोगों को अरेस्ट किया, उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा है। आपको मैं क्लियरली बता दूं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना खुद के एमएलए को अरेस्ट कराया है करप्शन चार्जेस में, लेकिन हमारा अरुणाचल के मुख्यमंत्री अरुणाचल का बात कर रहा हूं, मैं अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। लेकिन सोल डोडुम जी, तादार निगलार जी ने अरुणाचल के बारे में कह रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट अरुणाचल के बारे में कह रहा है। सर उन्होंने कहा कि कौन सा मुख्यमंत्री कहा सर। और सेकंड पॉइंट सर प्लीज सर, मैं सेकंड पॉइंट, उन्होंने कहा कि कौन सा डिपार्टमेंट में घोटाला करता है। मैं एक बात बता दूं, अभी का रिसेंटली पीएचसी डिपार्टमेंट, सर मेरा यहाँ पर पीएचसी डिपार्टमेंट में जब कोई टेंडर डालता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है सर, 60% को डिपार्टमेंट वापस काम कर लेता है। जब टेंडर करता है, पाइप सप्लाई को डिपार्टमेंट देता है, सीमेंट सप्लाई को डिपार्टमेंट देता है, रोड सप्लाई को डिपार्टमेंट देता है। ये क्या करप्शन नहीं है? आप अभी जो बोल रहा था तादार निगलार जो अच्छे है, उन्होंने बोल रहा था कि जेईई लोगों को बोल, इंजीनियर डिपार्टमेंट को बोलता है, क्या पीएचडी डिपार्टमेंट इंजीनियर का डिपार्टमेंट नहीं है क्या? वो सर मेरा क्वेश्चन है। और ठीक है, मैं आपका जो व्यक्तिगत जो आंदोलन था सेपा वाटर, उसका क्या हुआ, मैं थोड़ा देर बाद में आपका पास आऊंगा।
Soldodumji. I'll also come back to Tadar Niglar, but let me quickly go to Mr. Tame Tubin, President of the Arunachal Against Corruption. Tame Tubin ji, now the point is आप अरुणाचल में एजिटेशन किया, प्रोटेस्ट किया, अभी आप दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहा है. नाउ दिल्ली में आपका अरुणाचल में बीजेपी का सरकार है, दिल्ली में बीजेपी का सरकार है, तो आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं लेकिन आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या मांग है? व्हाट आर द मेन एलिगेशंस एंड व्हाट इज योर डिमांड? बिस्तर में वेरी ब्रीफली. हेलो सर, ये माफ करना, आपका साउंड सुनाई नहीं दे रहा है ना, क्लियर नहीं आपका आवाज है, और बाकी लोग का भी कुछ हमको कुछ सुनाई नहीं दिया, किसने क्या कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया. मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है ना, आपका उसमें कनेक्शन में प्रॉब्लम है. अच्छा सुनिए, आप अभी सुन रहे हैं हमको? कैन यू हियर मी नाउ? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? Tame Tubin, can you hear me? Yes, I can hear you, sir. अभी क्लियर है, अभी ठीक है. हाँ. Okay. Now my point is, आप लोग ने अरुणाचल में प्रोटेस्ट किया, अभी आप दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आपको कहना है कि कोर्ट में, आपका कॉलीग बीरेंद्र तलांग जी ने भी कहा है कि कोर्ट का मामला बहुत खर्चा का बात है, आप लोग आम आदमी है. नाउ इशू को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप अरुणाचल में बीजेपी का सरकार है, दिल्ली में बीजेपी का सरकार है, तो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो बात मतलब इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है वो कैसे तय करेंगे? देखिए, हमने कोई ये आपका कोर्ट से तो भरोसा उठ गया, तो सीबीआई और ईडी इंक्वायरी हमने मांगा, तो सीबीआई और ईडी इंक्वायरी देने में सरकार को क्या जाता है? अगर करप्शन नहीं ही किया है तो इतना हमें बीच रास्ते में जब हमने पद यात्रा पे चलते समय में हमें इतने रुकावट क्यों डाला? किस लिए डाला? हमारा टीम को 2 डिवाइड में क्यों किया? बताइए. अभी हमने ये हाल ही में हमने ये हमारा जो टीम एएसी का जो मुद्दा है उसमें हमने ये चेयरमैन हमारा तोको शीतल जी को बनाया. अभी तोको शीतल जी का ऊपर में भी एलिगेशन पे एलिगेशन, कहाँ से ये लोग आ रहे हैं? कहाँ सोया हुआ था जब तोको शीतल यहाँ पे जब चेयरमैन नहीं बनते समय में, जब वो आम नागरिक की तरह घर में बैठ रहा था, तब वो एफआईआर लोग कहा गया, उसका ऊपर में इतना एलिगेशन डाल रहा था, वो कहा गया. अभी वो चेयरमैन एएसी का बनवा दिया तो उन्हें क्यों इतना एलिगेशन डाल रहा है? तो ये करप्शन नहीं तो और क्या है सर? ये सवाल आप ये बीजेपी का जनता से, बीजेपी का जो नेता से पूछिए, क्यों करा हमारा ये मुद्दा पे रोक तो करने की कोशिश कर रहे हैं. आप उनको सवाल पूछिए. और हमारा ये चार्टर ऑफ डिमांड में भी 10 पॉइंट है, 1 पॉइंट नहीं है. अगर हम मेरा स्पोक पर्सन ने बताया, हम ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. आपका सुप्रीम कोर्ट तो चोरी है ना, आप हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट का आपका वकील तक को भी हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. अगर वहां में कितना केस भरा हुआ है ये हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट में. तामे तुबिन जी, अगर आपका ऊपर अगर आपका ऊपर अरुणाचल सरकार या तो पेमा खांडू ने एक पर्सनल लेवल पे अगर आपका आम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के ऊपर केस ठोकता है तो आप क्या करेंगे? तब तो आपको लड़ना ही होगा कोर्ट में. हाँ, वो तो मैं लड़ूंगा, किसी भी हालत में मैं तो लड़ूंगा, मैं तो झुकेगा नहीं. अगर मेरा ये मुद्दा गलत है तो सीबीआई इंक्वायरी कराइए, ईडी इंक्वायरी कराइए. सीबीआई और ईडी इंक्वायरी कराने में आपको इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? मेरा ये प्रदेश के जनता है जब ये नेता से है, तो मतलब इसका मतलब यही कहना चाहूंगा. इसका मतलब टुबिन जी, इसका मतलब अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का पास एविडेंस है, सबूत है? सबूत है, हमारा पास सबूत है. हमारे जंतर मंतर पे हमने पूरा सबूत दिखाया, वो भी आरटीआई के दौरा पे हमें मिला. हमने वहां पे मैंने कुछ कागज नहीं बनाया, पूरा डिपार्टमेंट से लिया वाला है हमारे पास. सर, आप अगर समय मिले तो आपका वहां से रिपोर्टर भेजिए, हम दे देंगे, हम आपको पूरा दिखाएंगे. तो let us put Tame Tubin ji and Tadar Niglar on the screen. Now Tadar Niglar ji, आपके पास स्पेसिफिकली Tame Tubin ji ने बोला है, I'm coming to you Mr. Mithi, आपके पास मैं आ रहा हूँ. now Tame Tubin ji ने कहा है, Tadar Niglar जी, कि उनका पास सबूत है. अगर इनको कहना है कि इनका पास अफोर्ड करने नहीं सकता है लॉयर, कोर्ट में जाना नहीं सकता है क्योंकि बहुत खर्चा है,
लेकिन अगर अरुणाचल सरकार या पेमा खांडू जी ने पर्सनल लेवल पे अगर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का ऊपर केस ठोकता है, केस फाइल करता है, तो अब ये जरूर लड़ेंगे क्योंकि इनका पास सबूत है, ये इनका कहना है। तो आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। जो शीतल मैडम का जो केसेस हो रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूँ, मैं इसमें आना चाहता हूँ सर, एक मिनट। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें सरकार का, पार्टी का कोई दूर दूर तक रोल नहीं है। किस लिए मैं बोल रहा हूँ? शीतल मैडम जी का मैंने खुद वीडियो कल देखे थे उनका फेसबुक अकाउंट से। उन्होंने एक लेडी, मीना करके एक लेडी है, उनको ब्लेम कर रहे थे। उनको उनका साथ थोड़ा सा नोक तो इससे पहले हुआ है, उन्होंने करवा रहे हैं। उसको मुझे पता नहीं वो लेडी कौन है, इसलिए मैं क्लियरली इसमें बोलना चाहता हूँ, इसमें हमारा कोई आई हैव नो कमेंट्स एट ऑल जो शीतल मैडम के एलिगेशंस में। एंड हम लोग उस बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हमें उसमें कमेंट मारना नहीं चाहूँगा। और दूसरा चीज़, जैसे कि उन्होंने कह रहे हैं कि कोर्ट में जाने के लिए पैसा नहीं है और सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। सर, आप मान्यवरों से पूछिए, सीबीआई इंक्वायरी करने के बाद भी वो कोर्ट में जाएंगे केस जो। अभी आप कोर्ट में जाने के लिए पैसा नहीं है, तो दिल्ली में इतना ग्रुप, इतना टीम लेके इतना पैसा कहाँ से आया है? मेरा और सवाल है, टामे ताबिन जी, ये इसका उत्तर दीजिए। वेट, लेट मी टेक ए रिस्पॉन्स। टामे ताबिन जी, निगलार जी का कहना है कि अगर कोर्ट में जाने के लिए पैसा नहीं है, दिल्ली में इतना टीम एफोर्ड कैसे कर रहा है? आप दिल्ली में कैसे ठहरे हुए हैं? इससे पता चलते वो ही करप्ट थे। जब ये आपका वो मुमकिन का, अच्छा, मैं तातर निगलर जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। वो मुमकिन का एक चेयरमैन बना हुआ था, उन्होंने कंप्लेन किया था चीफ सेक्रेटरी को। आपका ये बोलिए। ये पीएचई डिपार्टमेंट में 2000 करोड़ का उन्होंने कंप्लेन किया था। अभी वो केस कहा गया, उनको पूछे वो केस कहा गया क्यों, किस लिए चुप हो गया? और हमारा प्रदेश में, हमारा अरुणाचल में से बीजेपी सरकार को कोई भी उंगली करते हैं तो उन्हें अपॉइंट किया जाता है पार्टी में और खुश हो जाते हैं। कुछ दिन पहले भी पीछे वो चिल्ला रहा था, उन सबको अभी अपॉइंट कर दिया। निगला जी, जवाब दीजिए प्लीज। नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, सुनने वाला समझ लीजिए। ओके, जो कोई भी पार्टी के खिलाफ में ये हमारा जो राज्य का जो सरकार है, हमारा जो प्रदेश का जो सरकार है, उसका ऊपर, पेमा खांडू का ऊपर जो भी कोई एलिगेशन डालते हैं, उनके ऊपर आपका कार्रवाई करते हैं, तो बाद में उन्हें क्या करते हैं, बीजेपी में उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। तो ये एलिगेशन है। निगलार जी, टामे तुबिन जी का जनरल बात कहना है, इट्स अ ब्रॉड चार्ज ही इज मेकिंग, जो भी बीजेपी का खिलाफ जाएगा, आप ज्यादा नहीं, जो भी इनका कहना है कि जो भी बीजेपी का खिलाफ जाएगा या सरकार के खिलाफ जाएगा, उनको कुछ पोजीशन दे दिया जाता है क्योंकि उनका जो प्रोटेस्ट है या तो उनका बात है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। आपका क्या कहना है? मैंने सरकार के खिलाफ बिल्कुल खड़ा नहीं किया, और पीएचडी डिपार्टमेंट का नाम ले रहे उसका बिल्कुल मैंने खड़ा नहीं किया। उसका बाद तीसरा चीज़, वो 2000 करोड़ का बात करें, वो भी मैंने कभी सुना नहीं है, मैंने किसी को 2000 करोड़ के बारे में कंप्लेन किया। हाँ, मेरा एक मुमकिन एक एनजीओ है, अभी भी है, लेकिन हम लोग मुमकिन एक इशू रेज किया 2017-18 का बात है। रेज करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, मुमकिन का ये जो रेज करने 2017 का बात है, 17 जनवरी का बात, रेज करने के बाद फिर हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी नेरिस में 7 फरवरी को 2018 को इंडिपेंडेंट कमेटी बनाया था। वो कमेटी उसको मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, इसलिए वो मेरे लिए क्लियर है। और वो जो जितना भी 2000 करोड़ बोल रहा है, पीएचई डिपार्टमेंट बोल रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ओके, उससे पूछिए अभी उसके बारे में। Now we are also, I'll have to go for एक छोटा सा ब्रेक में जाऊंगा, लेकिन ब्रेक के जाने के पहले मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं टबोम डाई, जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है अपसू की, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी टबोम डाई जी। वी आर डिस्कसिंग, बेसिकली हम लोग ये डिस्कस कर रहा है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन में सीरियस एलिगेशंस लेवल क्या है अगेंस्ट पेमा खांडू, चीफ मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट।
नाउ खांडू जी का कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि 2019 में जो जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला इन्होंने ही इनको बैक करके ये एलिगेशन का आगे में है, पीछे है। सो बेसिकली उनका कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप अभी पहले आप तो यू आर सीरियसली इन्वॉल्व एज द अपसू जनरल सेक्रेटरी, अभी आप नहीं है, लेकिन आप क्या कहेंगे? यू आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, आपको क्या कहना है? Good evening and good evening to all the panelists. मैं बहुत आप लोगों का डिबेट्स को, क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है उसका कारण से मिस कर गया। जो अभी जस्ट थोड़ा पहले ही मेरा ऑडियो जो विजुअल से वो आया है, तो करप्शन तो अरुणाचल प्रदेश में अगर कहा जाएगा, नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, ये तो एक जनरलाइज्ड एक बीमारी है करप्शन जो है। और अभी जो हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो चल रहा है, हम लोग भी देख रहा है, यहाँ बहुत से एनजीओस है, गवर्नमेंट के ऊपर में भी आरोप लगाया है, और इंडिविजुअली हमारे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर में भी आरोप लगाया है। लेकिन बिकॉज हम लोग जो एक ये है, जो भी जो करप्शन है और जो सीएम साहब जो बोल रहा है कि वो जो कोर्ट कचहरी का जो बात चल रहा है, तो मेरा भी ये मानना है कि देखो एलिगेशंस और करप्शन चार्जेस तो किसी को पर भी डाल सकता है। अल्टीमेटली ये एक हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो न्याय प्रणाली को और चाहे जो भी हो हम लोग को एक विश्वास रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम लोग भी देखता है यहाँ जो कोर्ट सिस्टम है, जो न्याय प्रणाली है, जो यहाँ पे काफी एक ये होता है, समय पे सुनवाई नहीं होता है, ये भी एक वो है, ये एक अलग सा एक अपने में ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो लेकिन जो यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप एंड आई थिंक डेमोक्रेसी में एक प्रोटेस्ट करना इट्स अ पार्ट एंड पार्ट। Okay, democracy में protest, yeah, but I'll go for a quick break. But Mr. Mutsumithi ji, you know, I mean, आपको ये क्या कहना है? पेमा खांडू जी ने खुद क्यों सीबीआई इंक्वायरी नहीं दे रहा है? ये भी एक सवाल कर रहा है लोगों ने। Why is the state government not asking for a CBI inquiry? देखिए, बात ऐसे है कि शायद बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है, लेकिन द सीबीआई गेट्स इट्स पावर्स फ्रॉम द दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या किसी उसी कानून के तहत। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज given permission to the state CBI to enter the state as it wants, as it desires. आप अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे कि बहुत स्टेट्स ने सीबीआई को स्टेट्स पर एंटर करने के लिए परमिशन विथड्रॉ कर दिया है, लेकिन स्टेट हमारे अरुणाचल का स्टेट गवर्नमेंट ने विथड्रॉ नहीं किया है। सो इफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फील्स कि उन लोगों का जो एलिगेशंस है इज सब्सटेंशिएटेड, इज वैलिड, the CBI really doesn't need to take the state government's permission. It can come by itself. It can come and case दाखिल कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। See, when a person or any government is innocent, or if it feels it is innocent, why would it invite the CBI or any investigation agency और कहेंगे कि हमारे ऊपर जांच पड़ताल करेगा और एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी निकलेंगे? देखिए, ये तो बहुत सारे दिस इज अ वेरी गुड पॉलिटिकल आर्गुमेंट। ये पॉलिटिकल आर्गुमेंट के हिसाब से आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है मुत्सुमिथी जी, लेकिन लोगों को आप क्या कहेंगे? कैसे भरोसा दिलाएंगे? 2024 में इलेक्शन है, आप भी अलायंस पार्टनर है, तो इतना बड़ा एलिगेशन हो रहा है, तो इसको क्लियर कैसे होंगे? देखिए, करप्शन को आप दो दृष्टि से देखना है। वन, वेदर डेवलपमेंट इज हैपनिंग और नॉट, एंड अदर इज द पॉलिसीज इंक्रीजिंग द करप्शन इन द सिस्टम। देखिए, बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, आप शायद हमारे इतिहास के बारे में पता नहीं है, जब से स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड गठन हुआ है, उससे पहले क्या होता था कि ऑल
all appointments, regular appointments of officials or Group B used to be conducted by respective departments. There used to be a huge nepotism होता था. So there used to be a Okay. huge nepotism, political influence होता था. तो So आपको- eradicate this, the state staff selection board गठन किया था. कभी कभी हो जाता है कि वहां पर भी कोई कोई ऑफिशियल्स लोग, like I said, they are kleptocrats by nature. So उन लोग कर देता है, लेकिन Okay. सरकार ने किसी को पक्षा तो नहीं है. Yes, there has been no direct linkage with the government. So we have to take Before the overall. I will go for a break, but बीरेंद्र तलांग जी आपने कुछ कहना चाह रहा था. जी जी सर। सर अगर घर में एक फैमिली होता है, अगर फैमिली का बच्चा को कहीं जाना है तो पेरेंट्स से पूछना पड़ता, परमिशन लेना पड़ता है. तो मैं ये कहना चाहूंगा, विदाउट द परमिशन, विदाउट द नॉलेज ऑफ द सीएम, द चीफ सेक्रेटरी, कैसे ये घोटाला हो सकता है? हम ये सीधा सीधा ये कहना चाहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी, सीएम, जो गवर्नमेंट का मशीनरीज है, सब इन्वॉल्व है इस स्कीम में. और फॉर आपका एग्जाम्पल, आपको हम एग्जाम्पल एक बताना चाहूंगा. गवर्नमेंट का नाक का नीचे रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ है. ठीक है, ये कैसे मुमकिन हो पाया है? आप लोग बताइए, सारा पैनलिस्ट और अरुणाचल प्रदेश का सारा बीजेपी का नेता कह रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए. बीजेपी के सर, नेता देखिए। कह रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए. इस पेपर लीक इशू में भी यही कह रहे हैं. सर देखिए, ये लोग मैटर को जो जेन्युइन इशू है उसको डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, पॉलिटिकलाइज करने के लिए कोशिश कर रहा है. Okay. आप बताइए, अगर 60 लेजिस्लेटिव असेंबली में 56 एमएलए आपका पास है, तो कौन है जो अपोजिशन पार्टी है जो हम लोग को पॉलिटिकलाइज कर रहा है? मीनिंगलेस का बात करके जेन्युइन इशू को डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है. आप एपीएसएसबी का जिक्र किया है. Okay, I'll go for it. I'll have to stop you. एपीएसएसबी में भी पेपर लीक हुआ है. आपको पता है कि नहीं मुचुम मिट्टी साहब? आपको पता है ना? So उस I will. एग्जाम में हम भी बैठे थे. हाउ कुड इट बी पॉसिबल जब आपका पास सारा स्टेट में मशीनरीज है, ठीक है, गवर्नमेंट मशीनरीज है, आपका पास सीआईडी जितना भी सीआईडी है, एसआईबी है, जितना भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपका पास पुलिस का सारा डिपार्टमेंट है, तो आप उस करप्शन को होने में इसलिए नहीं रोक पाया है. Okay, I will respond. मिथी साहब से हम रेस्पॉन्स लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक में हम जाएंगे. जल्द वापस आएंगे. डोंट गो अवे. I'll be right back. Welcome back. We are discussing a very sensitive issue. The serious allegation जो लगाया है आम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने लगाया है, और चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और उनकी सरकार के ऊपर सीरियस करप्शन चार्जेस है. मैं डायरेक्टली जाऊंगा अभी टामे टुबिन, जो प्रेसिडेंट अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. टुबिन जी, आपने थोड़ा देर पहले आपने ये भी कहा था कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको दो भाग में भाग किया गया है. इज इट ट्रू? आर यू डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स नाउ? ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? ऑडियो, नो ऑडियो. ओके, टुबिन जी. हेलो. यस बोलिए. देखिए, हमारा टीम बहुत ही अच्छा से चल रहा था जब पद यात्रा पे. हमें बहुत बार जैसे हम असम पहुंचता गया वैसे हमें डिवाइड कराने के लिए कोशिश करता गया.
जैसे जैसे हमने ये आपका विश्वनाथ चार अली पहुंचा, उसमें भी हमें डिवाइड कराने की कोशिश किया। हम आपस में झगड़ा हुआ, हमारी टीम का आपस में। फिर बाद में हम एकजुट होके फिर हमने अपने आप को एक दूसरे को हमने कन्विंस करके हमने फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जब हमने तेजपुर पहुंचा, तेजपुर से भी फिर हमने फिर वहां से पहुंचने के बाद फिर अपना जर्नी को जारी रहा। जैसे जैसे हम आपका वेस्ट बंगाल की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारा टीम को डिवाइड करता गया। तो बाद में हम वेस्ट बंगाल पहुंच गया, वेस्ट बंगाल के बाद में हम बिहार पहुंच गया। बिहार के बाद में सुनने में आए तो हमारा फॉर्मर ये आपका एक्स प्रेसिडेंट टीम एआईसी का, उन्होंने रातों रात 12:12 में वीडियो ये क्लिक किया, वायरल कर दिया कि ये मुद्दा को वो चोरने जा रहा है। तो उन्होंने कितना पैसा लिया, किससे लिया, वो रिकॉर्ड हमारा पास है, वो फुल एविडेंस हमारा पास है। तो ये आपका देखिए, हमारा टीम का कोई पॉलिटिकली के मोटिवेट नहीं है। ये हम आम जनता लोग हम इंसाफ चाहते हैं। भ्रष्टाचार से हमारा प्रदेश में भ्रष्टाचार की ये पुल लगा के रखा हुआ है। आप देखिए हमारा ये प्रदेश में कितना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो ज्यादा हमारा 15-16 लाख होगा। और सरकार हमें ये भारत सरकार हमें फंड देते हैं, फंड बहुत ज्यादा देते हैं हमें, जिससे हमारा काफी हमारा डेवलपमेंट, आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, आपका एजुकेशन सेक्टर हो गया, काफी डेवलपमेंट ला सकता है। लेकिन हमारा वहां पे क्या करते हैं, आपका सेंटर भारत सरकार जैसे फंड बेचते हैं, अपने जेबों में भरते हैं। और जो कोई भी मुद्दा उसके ऊपर पे आवाज उठाते हैं तो उन्हें भी नोटों से बंद किया जाता है, नोटों से चुप कराया जाता है। ये तो जनरल एलिगेशंस है, ये जनरल एलिगेशन है। लेकिन इसको इसीलिए हम बार बार पूछ रहा हूं, अगर सरकार ने सीबीआई या आपको मांग कर रहा है कि ईडी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अगर ऐसा इस तरह का कुछ नहीं हुआ तो आपका पास एक ही ऑप्शन है, वो है एजिटेशन करते रहिए या तो आप कोर्ट में जाइए। तो कोर्ट में आपने तय कर लिया है कि आप कोर्ट कभी नहीं जाएंगे, आप ये कैसे हो सकता है? कोर्ट में देखिए, कोर्ट में ऑलरेडी ये केस चल रहा है, कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। क्योंकि कोर्ट में तो कुछ देर कोर्ट का बोला, कोर्ट काम करेगा। हम अपना जो हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ जो हक मिला, जो हमें दिया गया है, वो हम अपना काम कर रहे हैं। धरना बेचना क्या कोई गुनाह है? इन लोगों ने बंद कॉल को गुनाह कर आज एक क्लियर करिए, एक बात क्लियर करिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन अभी स्प्लिट हो गया है क्या? स्प्लिट हुआ कि नहीं? सर देखिए, मैं क्लियर करना चाहूंगा। स्प्लिट इन द सेंस, अभी मेरा टीम जो है स्प्लिट नहीं है, वी आर कम्पैक्ट। हम सभी एकजुट है, सारा अरुणाचल का 99% ठीक है। और जो पहले स्प्लिट कराया वो तो ऑलरेडी उसको हमने इम्पीच कर चुका है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हमने उसको इम्पीच कर चुका है। तो अभी स्प्लिट होने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन हम लोग जो अपना मुद्दा को विथ जो हम लोग का डिटर्मिनेशन है, हम लोग दिल्ली तक पहुंचा। इसीलिए जो हमारे स्टेट में जो पेमा खांडू का गवर्नमेंट है, उनको अपना कुर्सी गिरने का डर सता रहा है। इसीलिए कंस्पिरेसी ओके, दे आर डूइंग कंस्पिरेसी बिहाइंड अस। आपका चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन टोको शीतल मैडम है, श्रीमती टोको शीतल है। ओके, नाउ आपका ये कहा जा रहा है कि 2019 में आप कह रहे हैं कि यू आर नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड। टुबिन जी, आप कह रहे हैं कि आपको कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। ये तो सोलदोरुम जी ने भी कहा था कि कोई पॉलिटिकल इनका मोटिवेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। लेकिन खांडू जी और उनका जो बीजेपी का नेता लोग है, तदर निगलार जी हमारा साथ है। तो आप इनका कहना है कि 2019 में जो कैंडिडेट्स लोग को टिकट नहीं मिला था बीजेपी का, यही लोग इंजीनियर कर रहा है ये सब। तो तुबिन जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि 2024 में अरुणाचल में स्टेट इलेक्शंस भी है, असेंबली इलेक्शंस। तो टाइमिंग के बारे में बहुत लोग ये भी प्रश्न कर रहा है कि टाइमिंग अभी क्यों है, पहले क्यों नहीं बोला, अभी क्यों बोल रहा है? तो आप क्या कहेंगे? देखिए,
हमें कोई ये पॉलिटिकल हम कोई पॉलिटिकल चीज का भी मैंने उधर ये आवाज उठाया भी नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट भी हम चाहे अभी उठाओ, कल उठाओ, परसों उठाओ, नरसों उठाओ, अगर हमें जैसे ही हमें डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में हमें तो समय तो लग गया। तो मुद्दा को मैंने कोर्ट में जाने का कोशिश किया, तो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई जस्टिस नहीं दिला रहा है। देखिए मेरा कोई आप जैसे आपका सवाल को मैं बाद में जवाब देना चाहूंगा। मैं ये जवाब देना चाहूंगा, मेरे सरकार को पूछना चाहूंगा कि आपका सीबीआई इंक्वायरी कराने में क्या जाता है? अगर आप करप्शन नहीं किया है तो आप करवा दीजिए, आप सिंपल से करवा दीजिए, और दूध का दूध पानी का पानी उसमें हो जाएगा। आपका करप्शन हुआ नहीं हुआ, सीबीआई इंक्वायरी कराने ठीक में है, लेकिन problem लेकिन क्या है? लेकिन इसमें इस सवाल का उत्तर मुत्सुमिथी साहब ने दिया है। मुत्सुमिथी साहब का यह कहना है कि अगर करप्शन किया ही नहीं है तो सीबीआई इंक्वायरी क्यों बुलाएगा, इनका यह कहना है। सर देखिए ये पब्लिक को गुमराह कर रहा है, ठीक है। ये लोग का पॉलिटिक्स एजेंडा है। लेट्स हैव एवरीबॉडी। अपना पार्टी को बचाने का नाकाम कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम अपना जो वो है मुद्दा को कभी आधा रास्ता में छोड़ के नहीं जाएंगे। हम अपना फाइट को जारी रखेंगे। ये लोग पब्लिक को गुमराह कर रहा है, पब्लिक को आईवाज कर रहा है, पब्लिक का सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 99.9% ऑफ अरुणाचलीज को ये अवेयर हो चुका है, सब जान चुका है कि ये नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट। और उनको भी पूरी 100% उनको भी ये यकीन हो चुका है कि हम लोग का अभी चलने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्या है अपना एजेंडा चला रहा है। हमारे पास इतना सब कुछ जो है, क्या वो हमने बनाया है? जो सब हमारे पास है वो ट्रू एंड सर्टिफाइड कॉपीज है, दैट आर प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा है जहां करप्शन नहीं हुआ है। हम मुत्सुमिथी साहब को कहना चाहूंगा कि आपको मैं पर्सनली भी दिखा सकता हूं कहां में इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट में हुआ है। सीएमओ ऑफिस में भी हुआ है, गवर्नर ऑफिस में भी हुआ है, पंचायत डिपार्टमेंट में इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है, ये भी मैं बता सकता हूँ। राइट राइट। नाउ मिथी साहब का आपका पास आऊंगा, आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, बट सोलदोदुम ने भी कुछ ऐड करना चाहता है इसमें, देन आई विल कम टू मुत्सुमिथी। सोलदोदुम, यस सर एक बात है जो अभी जो लेट्स गिव एवरीबॉडी मिथी साहब ने बोला है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए अभी हम पता नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम उसको वो है, वो देख रहा है कि फर्स्ट टाइम है। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत अच्छा चला रहा है, तो मैं 2-3 दिन के बाद उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा, हम उसको 5 या 4 दिन में उसका जितना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जितना करप्शन हो रहा है, जितना काम नहीं किया है, जो भी है सर लेके आके आपका चैनल में ही सर हम देख के वो इसका पर्दाफाश करेगा। क्योंकि उन्होंने बहुत तारीफ किया कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। अरे आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो आपको जानना चाहिए। वो क्लियरली बात बोल रहा है। और हम ये मुकुट मिथी ये कौन है, ये वो आदमी का एमएलए का पास हम जाके उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम 4 या 5 दिन बैठ के उसका जितना भी काला छिपा है हम लेके आएगा। ये फर्स्ट है। पर्सनल मत होइए, डोंट गो नहीं सोलदोदुम, आप पर्सनल सुनिए, आप पर्सनल अटैक मत कीजिए, ये है पर्सनल अटैक मत कीजिए, वी आर डिस्कसिंग, हम लोग इशू डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हम लोग को सिखाता था पहले समय में, करप्शन नहीं करना है, इंजीनियर का बीबी को वर्क ऑर्डर देता है, इंजीनियर ही काम करता है, बीबी का नाम से वर्क ऑर्डर देता है, एमएलए वर्क ऑर्डर देता है। आज कहाँ गया, इसका सुर क्यों बदला है? इसको हम कंफ्यूज होते हैं कि ये बीजेपी का आदमी है ना कांग्रेस का आदमी है, ये क्या आदमी है, इसको हम कंफ्यूज होते हैं ये आदमी को। उस यही हम लोग को पहले 2017 को सिखाता था, बोलता था, इसका तो हम एक्सपायर, इसको तो हम देख के हम लोग इसका मानता था ये आदमी कुछ कर सकता है। अभी सुर बदल गया। यही आदमी था पहले बोलता था कि एमएलए लोग अपना बीबी का नाम से वर्क ऑर्डर बनाते हैं, डिपार्टमेंट और जेई लोग अपना बीबी का नाम से वर्क ऑर्डर बनाते हैं, वही लोग काम करते हैं। ओके यू पॉइंट टेकन लेट मी, मैं मुत्सुमिथी साहब का पास नहीं मैं हर कोई पब्लिक सपोर्ट करने वाला को टिकट मांगेगा। बेकार वाला बात मत बोलो या पब्लिक को गुमराह मत बनाओ। अगर बात करना है तो डिबेट करना है तो अच्छा बात में डिबेट करो, या बेकार में हर कोई पब्लिक तो नहीं, ये आप किसको कह रहे हैं? ये बात हमने नहीं कहा सोलदोदुम, ये बात हमने नहीं कहा है टिकट वाला, ये बात नहीं सर, जो ये जो बोल रहा सर, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ।
मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो ये लोग बोल रहे हैं, जो ये अभी बोल रहे हैं, जो दादर निकलार बोल रहे हैं, और ये कौन था वो मुकुट नहीं नहीं, वो ये बोल रहे हैं, यहाँ ये लोग बोल पैनलिस्ट ने रहे हैं। ये नहीं बोला मुकुट है, मिट्टी का तो कोई ना, पैनलिस्ट इसको ने हम नहीं सोचते बोला लगे है काम करें। ये कोई। ये मेरा नहीं चैलेंज है नहीं इसको। नहीं, सोल दो, मैं एक क्लेरिफाई कर देता हूं आपको। आज हमारा शो में बैठा हुआ कोई पैनलिस्ट ने ये बात नहीं कहा है 2019 का बात। ये न्यूज़पेपर में एक बीजेपी नेता को कोट किया गया है। नाउ लेट्स नॉट गो इनटू दैट। मिस्टर मुत्सुमिथी जी, आपको क्या कहना है? आपने सुना है बेसिकली। मिथी जी, देखिए ऐसे बात है, ये शख्स ने हमारे तरफ से जो जवाब था, ये शख्स ने व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनली तौर पे, चैलेंजिंग तौर पे, दैट इज द प्रॉब्लम, यू नो। हाउ कैन द गवर्नमेंट हैव अ डिस्कोर्स with anything when you keep on not listening to them? चैलेंज। देखिए बात यह है, आप हमारे कंस्टिट्यूंसी में जरूर आइए, मैं आपको स्वागत करता हूं, मैं आपको विनम्रता से यहाँ स्वागत करता हूं। यहाँ पे डेवलपमेंट जो हो रहा है, डेवलपमेंट कमी भी है, जरूरी ये नहीं है कि हमने सब कुछ कर सका, बट ये बात को छोड़िए। दूसरी बात यह है कि जो किसी ने ये बात उठाया था कि देखिए ये पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है। अगर आप सरकार के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप लेजिस्लेटिव के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप जुडिशरी के ऊपर विश्वास नहीं, योर ओनली ऑप्शन इज टू गो टू इलेक्शंस। नाउ यहाँ पे जितने लोग भी हैं या जितने भी एसोसिएशंस में भी है, हमारा ये नहीं कह रहा हूँ कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन भी ऐसे ही है, पर मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ भी बहुत पॉलिटिशियंस लोग हैं। ये नहीं कि ये मुद्दा पॉलिटिकल है, बट व्यक्तिगत तौर पे ये जो मैडम था, शीतल मैडम, वो ने एमएलए इलेक्शन लड़ा। यहाँ पर जो एमएलए इलेक्शन, यहाँ पर जो कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे जो विजय पाटिल थे, वो भी एक एमएलए इलेक्शन लड़ा। हमारे सम्मानित ये जो डोडुम साहब, वो भी एक पंचायत पे इलेक्शन लड़ा। लेकिन मैं ये दोषी नहीं कर रहा हूँ, ये आपको आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आप लोग पॉलिटिकल कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस्ड है। The only way you can reach out your voice is through politically and to fight the elections if you do not believe in the system, the whole system. Now the other thing that I was saying कि the CBI, मैंने आपको ऑलरेडी जिक्र किया है, the CBI is welcome जांच पड़ताल करने के लिए। राज्य सरकार का परमिशन जरूरी नहीं है, राज्य सरकार can only withdraw those permissions. So anybody can come have an investigation. Now अभी बहुत सारे लोगों ने ये आरोप किया कि हमारा अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य के लिए, मेरे पार्टी के भी अपना पॉलिटिकल स्वास्थ्य के लिए हम ये सब करते हैं। देखिए, ये सरकार के खिलाफ इलेक्शंस पर मैंने भी उठा, मेरे पार्टी ने भी उठा, लेकिन समय के साथ हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, बिजली बन रहा है, नल पर जल मिल रहा है। अब इसको मैं डेवलपमेंट नहीं कहूं तो क्या कहूं? आंखों पर पट्टी बांध के क्या ये एलिगेशन, वो एलिगेशन, हवा पे एलिगेशन मारते रहूं कि इस तरीका से चलता है क्या? ओके, ऐसे नहीं चलता है। ये वेरी फोर्सफुल आर्गुमेंट बाय मुत्सुमिथी जी। टामे टुबिन जी, आप क्या कहेंगे? नाउ मुत्सुमिथी ने ये एक पॉइंट रेज किया है, टुबिन जी, कि आपका कोर्ट का ऊपर भरोसा नहीं है, आप राज्य सरकार को भरोसा नहीं है, तो आप इलेक्शन लड़िए, आपका जनता का माध्यम से आपका पॉइंट रेज कीजिए, आप जनता का दरबार में जाइए, आप क्या इलेक्शन लड़ेंगे? सर, मैं सिंपल सा एक बात, मैं आपका ये बात को मैं रिप्लाई देना चाहूंगा। देखिए, हाल ही में हमने कुछ 1-2 साल पहले मैंने एक हाईवे पे मैंने एक आरटीआई करके रखा था, आपका चंदननगर टू होलोंगी। तो उस बीच में मैंने आरटी करते, मुझे डॉक्यूमेंट क्या होते हैं कि इन लोग आरटीआई में भी डॉक्यूमेंट देने में भी इन लोग बहुत डिले कर देते हैं। ऑफिसर बीमार था
ऑफिसर आउट ऑफ स्टेशन था, ऑफिसर के रिश्तेदार बीमार था, ऑफिसर के रिश्तेदार गुजर गया, ऑफिसर का बीबी बीमार था, ऑफिसर के बच्चे बीमार था, ऑफिसर के हॉस्टल में बच्चे को लेने गया था। ये सब सवाल आ जाते हैं। तो आरटीआई इन लोग एक्शन आरटीआई का मुताबिक में इन लोग 30 देश का अंदर में मुझे रिप्लाई देना चाहिए था डॉक्यूमेंट्स को एज ए पार आरटीआई रूल। तो इन लोगों ने क्या करता है, फिर से हमें सेकेंड अपील करना पड़ता है। तो इस दौरान आरटीआई करते करते हमें डॉक्यूमेंट को मिलने के लिए लगभग हमें 5-6 महीना लग जाता है। तो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते करते डॉक्यूमेंट को स्टडी करते करते हमें 1.5 साल लग जाता है। तो हमने ऐसे करके हमने ये हाईवे का जो ज्यादा किलोमीटर नहीं है, 19 किलोमीटर है, 19-20 किलोमीटर का है हाईवे, नेशनल हाईवे आपका अभी जो चंदननगर तो होलोंगी रोड का। तो इसमें आपका सैंक्शन था आपका रोड का आप 200 करोड़ कुछ 267 करोड़ ऐसे कुछ का अमाउंट है। तो हमने उसमें छानबीन करके हमने डॉक्यूमेंट स्टडी करके हमने एसआईसी में कंप्लेंट किया। तो एसआईसी वालों ने अभी तक उसका रिपोर्ट मुझे नहीं दिया। कहता है कि उससे ले लो, एसपी ट्रांसफर हो गया, दूसरा एसपी आ गया, करते करते 3 साल लग गया। तो आप बताइए कानून को मैं कैसे भरोसा करूं? आप सीधा सवाल जवाब दीजिए टामे तुबिन जी। आप कह रहे, मेरा सवाल ये था काइंडली आंसर डायरेक्टली कि आप कोर्ट का ऊपर भरोसा नहीं है, आपने बोला। आपने कहा कि राज्य सरकार का ऊपर भरोसा नहीं है। माफ कीजिएगा सर, आपका साउंड थोड़ा क्लियर नहीं है। अभी सुन रहा है क्या? कैन यू हियर मी? आप सुन रहे हैं अभी? हाँ अभी ठीक है सर। ओके, आपका कहना है कि आप कोर्ट का ऊपर भरोसा नहीं है, अब राज्य सरकार का ऊपर भरोसा नहीं है। तो इस इशू का रिजॉल्व करने के लिए मुत्सुमिथी ने कहा आप जनता का दरबार में जाइए, अब इलेक्शन लड़िए, या तो आप जनता का जो मैंडेट होगा, अगर बीजेपी सरकार पेमा खांडू जी का नेतृत्व में बीजेपी अगर 2014 में आ जाता है तो आपका जो एलिगेशन है वो मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसका। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन में कोई जीतो ना जीतो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा ये केस को अब भी हमें इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं देगा हम दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे। हमने ईडी और सीबीआई इंक्वायरी का मांग किया है। हमने कोई 24 इलेक्शन का हमने मांग नहीं किया। ये जो सर जो बोल रहे हैं, इन लोग का बोलने का मुताबिक से मेरा आउट ऑफ नॉलेज है। इन लोग कहना क्या चाहते हैं, इन लोग कह क्या रहे हैं? नो, बात को घुमा फिरा के इनका ये मैं तुबिन जी, मैं यही समझता हूं, मेरा समझ में यही आया है मुत्सुमिथी जी ने जो कहा है कि आप जनता का जो फैसला है, आम आदमी का जो फैसला होगा 2024 का, किसको वो आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? सर देखिए, हमारा सोच जो, हाँ तालांग जी बोलिए। एमएलए बनने का, कोई पार्टी बनाने का हम लोग का ये सोच नहीं है। हम लोग का मोटो, हम लोग का मुद्दा ये नहीं है, ठीक है। और मुत्सुमिथी साहब से हम बात करना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये हम तो डिबेट करना चाहते थे सीएम पेमा खांडू जी से। अगर सीएम, हम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम जो एंटायर सीएम इंक्लूडिंग सीएम साहब को और बीजेपी का जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स है और कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उनको यहाँ जंतर मंतर में इनवाइट करना चाहूंगा। आप लोग आइए, पब्लिक का बीच में, नेशनल मीडिया का बीच में डिबेट कीजिए हमारे साथ। अच्छा, आप अगर क्यों भाग रहे हैं? सर सुनिए, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स। स्टेट गवर्नमेंट जो इतना रिलुक्टेंट क्यों दिखा रहा है, क्यों इतना रिलुक्टेंट है? सीबीआई और ईडी को रिकमेंड करने में आपका क्या जा रहा है? आपका पर्सनल प्रॉपर्टी से या आपका फिजिकल से, आपका फिजिक्स से कुछ जा रहा है क्या? हमारा जेन्युइन डिमांड है, हमारा जो डिमांड है वो जेन्युइन है। हमारे पास सबूत है, हम बिना सबूत के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम सबूत के साथ, सारे सबूत के साथ, हमारे पास सबूत का भंडार है, सबूत का भंडार है, tons, loads of evidence, that is what the
अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने कह रहा है आपके पास लोड्स ऑफ एविडेंस है। अब ये भी आपने कहा है यू आर इनवाइटिंग पेमा खांडू एंड हिज कैबिनेट कॉलीग्स टू जंतर मंतर। लेकिन टलांग जी, बीरेंद्र टलांग जी, मेरा ये सवाल है, अगर आपको अरुणाचल मुख्यमंत्री या स्टेट गवर्नमेंट का कोई नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री का कोई नॉमिनी अगर आपको इनवाइट करे डिस्कशन के लिए, क्या अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन डिस्कशन में करने के लिए रेडी होंगे? नहीं सर, हम एक ही बात पर हम सहमत होंगे। जब पेमा खांडू साहब उनके लीडरशिप में जो स्टेट गवर्नमेंट है सीबीआई और ईडी का रिकमेंड करेंगे, जो हमने एलिगेशंस लगाए हैं उसके ऊपर सीबीआई और ईडी का इंक्वायरी कराएंगे, तो हम अभी भी यहाँ से वापस अपना स्टेट को वापस जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम जो डिलेमा में इसीलिए सोचने में हमको इसीलिए मजबूर हो जाता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो इतना रिलुक्टेंट क्यों दिखा रहा है, अपना पब्लिक, हमने ही उनको चुना है। नहीं वो मालूम है। है तो तलांग जी, स्टेट गवर्नमेंट से इनविटेशन अगर आता है बातचीत करने के लिए, क्या अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन बातचीत करेंगे? बातचीत सर एक ही शर्त पर होगा, सीबीआई और ईडी का इंक्वायरी होना पड़ेगा, उसमें रिकमेंड करेगा बोल के बोलना पड़ेगा, तभी हम बात करेंगे, नहीं तो This is the big story at this point in time. अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का यही कहना है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको एश्योरेंस देते हैं कि सीबीआई और ईडी इंक्वायरी उनको रिकमेंड करेंगे, तब स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के लिए ये रेडी है। दैट इज व्हाट बीरेंद्र टलांग, आपको यही कहना है, इस कंडीशन में आप बातचीत करेंगे? जी All right, that is a big development. लेकिन सोल डोडुम जी, आप भी एजिटेशन, पब्लिक प्रोटेस्ट आपने भी किया, आपने सोलो मार्च किया सेपा से ईटानगर, उसके बाद आपने दिल्ली जाने का थ्रेटनिंग दिया था, उसके बाद आपने लेकिन एक एग्रीमेंट पे आया कि स्टेट गवर्नमेंट ने आपको भरोसा दिलाया कि आपका जो मांग है, आपका जो इश्यूज है उसको इंक्वायरी किया जाएगा। एक मंत्री भी सेपा गए थे, एक मंत्री सेपा गए थे तो विजिट करने के लिए। इसके बाद इसका अपडेट क्या है, अभी तक क्या अपडेट है? सर एग्जैक्टली मैं आपने पूछा, मैं बता दूं, अभी समय में जो स्टेट गवर्नमेंट जो अभी कर दिया है, जो डीसी ट्रांसफर है और एक्शन का जो ट्रांसफर है हो गया, उसके बाद एसआईटी है सर, वो अभी भी कोर्ट में गया है, और एसआईसी जो है अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो करप्शन का चार्जेस है जो वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो लोग को हम यही बताना था कि हम अभी इसलिए तोकोसतल मैडम का साथ में हम बार नहीं रोक सकते, क्योंकि मेरा भी गुड है बोल के हम जो ये करप्शन होता है उसको जानबूझ के हमारा सरकार जो रुकाता है। अभी भी मेरा जो एक काम अभी भी बचा है, बाकी सब काम हो गया। अभी जो एसआईसी का जो है वो अभी भी बचा हुआ है सर, जो करप्शन का चार्जेस है वो अभी भी बचा हुआ है सर, उसके अलावा बाकी तो हो गया है, ये तरफ एक बच्चा है सर। Okay, now if तादार निगलार जी, स्टेट सेक्रेटरी अरुणाचल बीजेपी, आप क्या हमको सुन रहे हैं तादार जी? Is तादार निगलार जी, can you hear me? तादार निगलार जी? Yes, I can hear. Yes. So let me request my producers to give the line quickly. अच्छा तादार निगलार जी, आपका क्या कहना है अभी व्हाट इज द रोड अहेड अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन? इनका कहना है कि जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होंगे या तो ईडी का इंक्वायरी नहीं होंगे, वो दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। अभी इस बारे में सर मैं और क्या कहूँगा, मुख्यमंत्री साहब, ऑनरेबल एमएलए मुख्यमंत्री साहब, जो आपको स्पष्ट रूप में बता दिया, सीबीआई ईडी आने के लिए कोई सरकार का कोई चिन्ह। आपको बहुत सारा चीफ मिनिस्टर से इवन दिल्ली के अभी देखे होंगे, वो वहां पे रेड हो गया, आप सबको पता है, वो सब कहने के लिए होता है। इसलिए मैं और एक चीज वो है, इसलिए ये इसमें सरकार सीबीआई ईडी अपना हिसाब से आ सकते हैं एनी टाइम, वो जैसे नीतीश साहब ने बताया। और दूसरा बात, मैं जितना भी यहाँ पैनल डिस्कशन में हो रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ पैनलिस्ट को कि पर्सनल ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि अपना अपना मुद्दा है, अपना अपना इश्यूज है, अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जाए तो बढ़िया बात, अच्छा बात है। और दूसरा चीज, जैसे कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, जैसे मुचू साहब ने बोला, मैं उसको सेकेंड करता हूँ। जैसे कि उन्होंने कोर्ट को कॉन्फिडेंस दिए हैं और करप्शन चार्जेस स्पेसिफिक नहीं है, हजार करोड़ का बता रहे हैं, कौन सा हजार करोड़, उससे स्पेसिफिक नहीं।
और जो डीजीओ बोल रहा है सर, SDRY बोल रहा है, ये ऑलरेडी सब जुडिस है। और सर एक वेरी इंटरेस्टिंग जो SDRY जो स्कीम्स है, ये जो ऑलरेडी 2005 हो गया, तो उसको ऑलरेडी जजमेंट हाई कोर्ट से डिसमिस किया वाला, तो फिर इसमें क्यों उनका ये हो रहा है? नंबर 3 ऑलरेडी सब जुडिस है, सब जुडिस चीज को मतलब रिपीटेडली क्यों बोल रहा है? और स्पेसिफिक नहीं है उनका ये एलिगेशन स्पेसिफिक नहीं है कि इसमें ये है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो कोर्ट में विश्वास नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को विश्वास नहीं है, देश का संविधान को विश्वास नहीं है, और इलेक्टोरल सिस्टम को विश्वास नहीं है। लेकिन निगलर जी, AAC का ये भी कहना है, थोड़ा देर पहले इनका स्पोक्स पर्सन बीरेंद्र तलांग जी जो कि हमारा शो में मौजूद है, तलांग जी ने ये कहा है कि अगर आपके सरकार ने उनको एक एश्योरेंस भी दे दिया कि CBI या तो ED का इंक्वायरी होंगे कि ये आपका सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होंगे, तो आपका क्या आप ये एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते हैं? देखिए ऑलरेडी नंबर 1 गवर्नमेंट इज सेइंग कि वहां पे कुछ नहीं है, करप्शन जिस तरह से एलिगेशन लगा रही है, ग्रोथ मतलब रैंडम एलिगेशन लगा रहे हैं, इसमें स्पेसिफिक कोई एलिगेशन नहीं है सर, मैं बार बार बता रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, सरकार कह रहे हैं कि इसमें ऐसे जो एलिगेशन कर रहे हैं ऐसे है नहीं है, वो मैं भी कह रहा हूँ, पार्टी की तरफ से भी सरकार एक ही है। उसका बात यह है कि ये ऑलरेडी सब जुडिस है, और कोर्ट या CBI या ED आने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है, जैसे आप बार मैं भी बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री साहब ने बार कह रहे हैं। इसका बावजूद वो जो पॉइंट कह रहे हैं, मतलब वो पॉइंट का कोई बेसिस ही नहीं है, जिस तरह से आपका स्पोक्सपर्सन साहब बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ये जो इसलिए हम कहते हैं उनका पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकता है। नहीं, हमारा सवाल ये नहीं है तादर जी, हमारा सवाल ये है कि इनका कहना है, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का कहना है, आपका सरकार अगर एश्योरेंस देते हैं तो ठीक है, CBI इंक्वायरी कर लीजिए या तो ED इंक्वायरी कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सिर्फ एश्योरेंस के तय पर इनका कहना है कि ये बातचीत करने के लिए आ जाएंगे, बातचीत करने के लिए, लेकिन एश्योरेंस देना पड़ेगा। आप एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते हैं? व्हाई कांट यू गिव एन एश्योरेंस? वही तो मैं सर बोल रहा हूँ, वहां पे ED और CBI को आने के लिए या गवर्नमेंट का विदाउट एश्योरेंस में भी आ सकते हैं, तो इसमें सरकार एश्योरेंस क्यों देंगे? और नंबर 1 नंबर 2 सरकार कह रहे इसमें कुछ नहीं है, जाके व्हेन देयर इज नथिंग हियर व्हाई यू विल इन्वेस्ट सो मच, जब बोल रहे हैं that is why there is only one way that they should go to the court, and उनका बोल रहे repeatedly they are saying कि they have evidence. When they have evidence, why they are not giving that evidence to the court? Okay. Very confusing. All right. Now let me go to Tame Tubin. Tame Tubin जी, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है अभी, I am about to end. लेकिन देखिए, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का टुबिन जी ने भी कहा है, अभी तदार निगलर जी ने कहा है बीजेपी का, इनका कहना है कि CBI और ED अपने आप भी आ सकता है। मुत्सुमिथी जी ने भी यही कहा है कि इनका कोई स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं, सरकार अगर उनको नहीं परमिशन देते हैं और खुद भी नहीं आते हैं, तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए। तो आपको कोर्ट में अब नहीं जाएंगे, तो आपको कहना देन इनका भी एक कहना, तो पब्लिक का मैंडेट को आप मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे अभी? तुबिन जी देखिए, हमारा मांग शुरुआत से CBI मांगा था, ED मांगा था। हमने पद यात्रा पे भी 2000 किलोमीटर हमने पद यात्रा करके आया, हमने गला पार के चिल्लाया CBI इंक्वायरी करा दीजिए, ED इंक्वायरी करा दीजिए। इन लोग बार रोक टोक करके हमें बीच में बहुत बार रोकने की कोशिश किया, अखिलेश प्रताप जी को भी। और अभी कहां से एलिगेशन कि कौन सा गधा से ढूंढ के ला रहा है इन लोग का ऊपर। देखिए, मैं ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बस हमारा मांग है कि बस CBI इंक्वायरी करा देना है, ED इंक्वायरी करा देना है। इन्होंने एश्योरेंस क्यों नहीं दे रहा है, क्यों दे नहीं पा रहा है? ओके, मिस्टर मुत्सुमिथी, तो इस टाइप का अगर एलिगेशन होते रहता है तो इम्पैक्ट तो होता है, पब्लिक का मन में तो एक इम्पैक्ट होता है, एक इंप्रेशन बनता है, क्योंकि ये इसलिए अलग है, ये एक सरकार के ऊपर भी एलिगेशन लगा रहा है और एक मुख्यमंत्री जो है
पेमा खांडू जी उनका पर्सनली भी एलिगेशन लगा रहा है, तो इसका ज्यादा इंपैक्ट जैसा लग रहा है लोगों का मन में। तो आपका क्या कहना है? डू यू थिंक दैट इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा? आप कैसे कह सकता है ये? देखिए, ये बहुत अजीब सा विडंबना है यहाँ पर कि ये लोग सब कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बहुत ठीक है, लेकिन पेमा खांडू को हटाना चाहें। अभी बात ये है कि दूसरी स्टेट पे, दूसरे राज्य पे अगर आप देखेंगे जहाँ एलिगेशंस होता है किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, देन द पॉलिटिकल मूवमेंट और इवन ए नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट, जैसे दिल्ली में हुआ था केजरीवाल के जरिए, उनके जो प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ था, देन यू नो दे वॉइस आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यहाँ हाउ कुड आई से इट, आइसोथेरिक, माना हाउ वुड आई से इट, सेलेक्टिवली सरकार सब ठीक है लेकिन ये आदमी खराब है, इसको हटाइए, उसको हटाइए। ये षड्यंत्र चल रहा है मेरे अपने सोच पे। देखिए, कोई किसी के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाना, आरोप लगाना, वो अपने आप में खराब नहीं है, बट हैविंग प्रैक्टिकली सीन, हैविंग प्रैक्टिकली विटनेस जो यहाँ पर रिफॉर्म्स हुआ, ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ, और किसी ने जिक्र किया है अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के ऊपर। देखिए, दीज आर लेगेसी प्रॉब्लम्स एंड आई अंडरस्टैंड ऑल्सो, ये लेगेसी प्रॉब्लम्स है, करप्शन एक लेगेसी प्रॉब्लम्स है, अरुणाचल का जो पॉपुलेशन में समा गया है। हाउ डू यू इरेडिकेट इट? ट्रांसपेरेंसी, डेवलपमेंट। अभी ट्रांसपेरेंसी जैसे बहुत सारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने मुद्दा उठा रहा है, सरकार जवाब दे रहा है स्कीम्स के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट नेचर पे अपलोड हो रहा है। दिस इज वन जरिया, बट करप्शन हैजंट स्टॉप्ड। आई एग्री, मैं ये मानता हूं कि करप्शन हैजंट स्टॉप्ड, बट देयर इज एन इंटेंशन टू स्टॉप इट, देयर इज एन इंटेंशन। अभी बहुत सारे लोगों ने सेलेक्टिव स्कीम्स के बारे कहा है। देखिए, अगर मुझे लगा कि ये सचमुच पे किसी का गुनाह है वगैरह है, मैं भी असेंबली में उठाऊंगा ये इश्यूज को लेके। और मैंने बहुत सारे, पिछले बार भी जब ऐसे भी हम लोग तो पहले से ही सरकार के खिलाफ में थे। आप कहेंगे कि हम एक ही सरकार के हैं, एनडीए के हैं, पर हम लोगों ने भी इलेक्शन उनके विरोध लड़के उभर के निकला, असेंबली में भी बहुत चर्चा हुआ। तो दैट डिस्कशन, दैट डिस्कोर्सेस करके हम लोग अंत पे पहुंचता है कि नहीं, थोड़ी बहुत कमियां है, कमियां को सुधारने के लिए एक साथ मिलके कैसे सुधारे, इस तरह हमें चलना है। तो हैविंग सेड दैट, आई हैव नो इल इंटेंशंस अगेंस्ट एनीबॉडी जो व्यक्तिगत रूप में आरोप लगाता है या व्यक्तिगत चैलेंज करता है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। दे आर वेरी यू नो, दे आर रिप्रेजेंट ए सेक्शन वॉइस ऑफ द पीपल, आई एग्री विद देम, बट दे आर नॉट नेसेसरली राइट। जरूरी नहीं कि सही है वो। मिठी जी, you have very well argued, you have placed your case very well, लेकिन बट हमारा पास टाइम कम है। सोल दोदम जी, very briefly, very short में बताइए कि क्या कहना है आपको, फाइनल कमेंट्स। थैंक सर। मैं बता दूं कि मुझे हंसी भी लग रहा है, कि इसलिए मैं हंस रहा हूं कि हंसी लग रहा है कि मुकुल मिथि साहब है, ये खुद कभी बोलता है कि वो बीजेपी अगेंस्ट में कॉन्टेस्ट किया है, फिर बीजेपी का ही और सपोर्टर बात कर रहा है। हम समझ में नहीं आता, ये पार्टी का कोई प्रतिदिन है ना, ये बीजेपी का टीम का प्रतिदिन है। मुझे कोई उसका, हम ऐसा सुन रहे हैं ना, अजीब सा लग रहा है कि सब लाइव तरीका से देख रहे हैं। कभी बोलते हैं कि मैंने बीजेपी का खिलाफ में इलेक्शन लड़ा है, कभी बोलते हैं कि बीजेपी को तारीफ कर रहा है। मुझे लगता है कि इसका बदौलत मुकुल मिथि साहब को अभी पेमा खांडू साहब ने बहुत बड़ा पैकेज देने वाला है। हम शुक्र करते हैं कि आपका उनका अलायंस पार्टनर है सोल दोदम जी, उनका अलायंस पार्टनर है एनपीपी का प्रेसिडेंट। एनपीपी एंड बीजेपी और अलायंस पार्टनर्स। तो सही को तो बोलना पड़ेगा ना सर, कहीं जो भी हो, अगर गलत को गलत, सही को सही बोल सकना पड़ेगा ना। अगर एब्सोल्युटली। फाइनल कमेंट्स, फाइनल तादर निगलार जी, ये तो सर गलत बन तादर निगलार जी, आपका पास ऑप्शंस क्या है? अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ये एलिगेशन कर लेकर के 2024 तक भी जा सकता है, तो आपका अभी ऑप्शंस क्या है? फाइनल कमेंट्स तादर जी। सर, ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो भी करा, मैं तो फाइनली ये बोल रहा हूँ, ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि हम लोगों का बहुत सारा रिक्रूट है, उन्होंने कांग्रेस आई के लीडर से उन्होंने मिल रहे हैं और कुछ
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से मिल रहे, बहुत सारा एविडेंस है। और बाकी प्रेसिडेंट जो लास्ट टाइम में 2019 में हार चुके उन्होंने भी मिल रहे, उसका बहुत सारा रिकॉर्ड है, वो सब मैंने बोलना नहीं चाहता। आखिर लास्टली में यही कहूंगा कि हम सबको मिलके इस प्रदेश को, इस राज्य को, देश को चलाना है लोगों के भलाई के लिए। अभी ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को भी शायद जाहिर है कि आपको भी चाहते हैं अरुणाचल के भलाई होना चाहिए। Absolutely. At the end of the day, everybody should work. At the end of the day, everybody should work for the progress and development of Arunachal Pradesh. But this is a critical issue. Now, what has emerged from this debate is, yes, debate से यही मतलब conclusion में आता है कि Arunachal against corruption will continue with its agitation until CBI या ED इंक्वायरी जब तक नहीं होगा। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने यही साफ कर दिया है कि उनका जो प्रोटेस्ट है, उनका जो एजिटेशन है, आंदोलन है, ये जारी रहेगा। लेकिन उनका एक राइडर भी है। अगर इनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अगर एक एश्योरेंस भी दे देगा कि CBI या तो ED का इंक्वायरी होगा, तो ये बातचीत करने के लिए भी तैयार है। लेकिन स्टेट BJP का ये कहना है कि कोर्ट में जाइए, आपका पास एविडेंस है। आपने खुद कहा कि आपका पास काफी सारा एविडेंस है। अगर आपके पास बीजेपी का यह कहना है कि आपके साथ अगर काफी सारा एविडेंस अगर है, तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट को फैसला करने दीजिए। सो इट इज a catch-22 situation now with elections about a year and a half, less than a year and a half away in Arunachal Pradesh. I think this issue is going to continue. It is to be seen whether the Arunachal government or the chief minister personally takes the matter to court, whether they want to take the Arunachal against corruption to task. We don't know what will be the next move of the state government. But from this debate, the Arunachal against corruption has made it very clear कि इनका जो agitation है वो जारी रहेगा. This is not the last word we have heard on this issue, and we will keep close track of the allegations and counter allegations emerging in Arunachal Pradesh. I thank all my viewers for watching the show, and I thank all my panelists for giving so much time, and thank you very much. Good night and goodbye.